Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 6. Let's start. Today we are going to have a lecture on chapter number 6 Janapadas and Mahajanapadas. Right? The 16 Mahajanapadas in the 6th century BCE. BCE मतलब आपको पता है before Christian era. Right? The first one is Kamboj, Gandhara, Kuru, मत्स्य, सुरसेन, पंचाल, कोसला, मल्ला, वृजी, अंग, मगध, काशी, वत्स, छेदी, अवंती और अश्मका। अश्मका कहाँ पे है? वो आज के महाराष्ट्र में है, राइट। और ये जो दिल्ली है, इट्स अ मॉडर्न सिटी, प्रेजेंट मॉडर्न सिटी, राइट। This chapter is on the three important points, that is Janapadas, Mahajanapadas and the rise of the Magad Empire. Point number 1, Janapadas, जो पीरियड है फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। ओके, इसी पीरियड में जनपदास दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन्स रियलिटी में आए। ओके, जनपदास मतलब क्या? ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्टेट जो स्प्रेड हुए थे, जो कि आज का अफ़गानिस्तान है वहाँ से, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। किसके नॉर्थ वेस्ट में? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। और ईस्टर्न साइड में जो कि बंगाल एंड उड़ीसा है, और सदर्न साइड में महाराष्ट्र। इन एरियाज में जनपदा स्प्रेड हुए थे। ओके, द जनपदा अश्मग ऑक्यूपाइड अ पार्ट ऑफ टुडेज महाराष्ट्र, राइट। ये जो नाम है जनपदास के, ये हमको संस्कृत, पाली, अर्धमगधी लिटरेचर में मिलेंगे। और हमको इनके इंफॉर्मेशंस वी कैन ऑल्सो गेट फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस। ओके, कुछ जनपदास जो थे उनको हेड कौन करते थे? मोनार्चीज। मोनार्चीज मतलब वहाँ पे इट्स रूल बाय द किंग और क्वींस। और कुछ रिपब्लिक थे, वहाँ पे द गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे रूल करती थी, राइट। कुछ जनपदास हैड अ जन परिषद, वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स बैठे और डिस्कस करते थे। किसके ऊपर? ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। ओके, द प्लेस वेयर द डिस्कशन टुक प्लेस, जहाँ पे सब डिस्कशन होता था, तो उसको बोलते थे संताघर। ओके, गौतम बुद्ध जी जो थे वो शक्य रिपब्लिक में से, रिपब्लिक मीन्स वहाँ पे जो रूल करते थे वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी, ऐसा था शक्य रिपब्लिक, जहाँ से गौतम बुद्ध जी थे। हर एक जनपदा का एक कॉइनेज सिस्टम था फॉर द ट्रेड। ओके, पॉइंट नंबर 2, महाजनपदास। खोसला, वत्स, अवंती, मगध। खोसला, Kosla was located in the foothills of the Himalayas, in the region of Uttar Pradesh and Nepal. The famous cities of Kosla were Shravasti, Kushavati and Saket. Shravasti was the capital of Kosla, right? Gautama Buddha had lived in the famous Vihara Jitwan. वो कहाँ पे था? श्रवस्ती में, for a long time. The Kosala king Prasenjit was a contemporary. Contemporary means belonging to the same time of Gautama Buddha and Vardhaman Mahavir. Later, the state of Khosla merged into the Magad. Okay, वो जाके बाद में merge हो गया मगध में। Next one is Vatsa. जो वत्स महाजनपदा था, it was located in the region around Prayag, that is Allahabad in Uttar Pradesh. Kosam. Kosam was the capital of Vatsa, was the ancient city of Kaushambi. It was important center for trade. Three extremely rich merchants of Kaushambi had built 3 viharas for Gautam Buddha and his followers, right? King Udayana was the contemporary of Gautama Buddha. After King Udayana, the state of Vatsa could not maintain its independent existence for long. Okay, द किंग ऑफ अवंती कॉन्कर्ड, मतलब जो किंग थे अवंती के, उन्होंने इस स्टेट को क्या कर लिया? कॉन्कर्ड कर लिया, मतलब काबिज कर लिया। नाउ अवंती, द एंशिएंट किंगडम ऑफ अवंती वॉज लोकेटेड इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इसका जो कैपिटल था वो उज्जैन था। ओके,
The city was important trade center. The king of Avanti, Pradyodh, was also a contemporary of Gautam Buddha and Vardhaman Mahavir. During the reign of Nandivardhan, the state of Avanti merged into the Magad Empire. Right? Now, Magad, the ancient Mahajanapadas of Magad, was spread to the region of Gaya, Patna in Bihar and some regions in Bengal. The capital of the Magad was Rajgriha, Rajgir. King Bimbisara's palace was built by the architecture Mahagovind. इसको अच्छी तरीके से हाईलाइट करके रखो. Jivaka, the famous physician, was at the court of Bimbisara. Bimbisara had become a follower of Gautam Buddha. Right? Some Janapadas gradually became stronger. वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते गए. उन्होंने अपना जोग्राफिकल बाउंड्री जो है वो एक्सपांड कर दिया. ऐसे जनपदास बाद में आगे जाके उनको वो महाजनपदास बन गए. राइट. फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ दैट पीरियड इट इज़ क्लियर दैट अप टू 6th century BCE ऐसे 16 महाजनपदास ने स्पेशल इम्पोर्टेंस एक्वायर कर लिया. उसमें जो थे खोसला, वत्स, अवंती, मगध. ओके, जो हमने अभी पिछले पेज में देखा. वो क्या बन गए? बिकेम मोर पावरफुल अमॉन्ग सच जनपदास. पॉइंट नंबर 3, राइज ऑफ द मगध एम्पायर. आजाद शत्रु, द सन ऑफ बिम्बिसारा, ही कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन. उन्होंने क्या किया? मगध एम्पायर को एक्सपांड कर दिया. ओके, ही सक्सेसफुली कॉन्कर्ड मेनी रिपब्लिक्स ऑफ द ईस्ट. रिपब्लिक्स मीन्स जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती थी वहाँ पे उन्होंने क्या किया? उस एरिया को कॉन्कर्ड कर लिया. The kingdom of Magad prospered during the reign of Ajatshotru. He became follower of Gautama Buddha. After the Mahaparinirvana of Gautama Buddha, it was during his reign. उनके ही टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ और संगीति was held at Rajgriha. Right? The foundation of new capital Patligram of Magad was laid during the Ajatshotru's period. Later it became famous at पाटलिपुत्र. जो पाटलिपुत्र है वो अभी के पटना सिटी में है. A noteworthy successor of Ajatshotru was the king Shishunat. He annexed the kingdoms of Avanti, Kosala, Vatsa to Magad. Nearly the entire region of North India वो किनके कंट्रोल में आ गया? मगध एम्पायर के. इसी तरीके से मगध एम्पायर धीरे धीरे बड़ा एक एम्पायर बन गया. ओके. द नंदा किंग ऑफ द मगध एम्पायर. नंदास ने मगध एम्पायर को रूल किया बिटवीन द पीरियड ऑफ 364 BCE टू 324 BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा. उन्होंने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश किया था टू रन द ह्यूज एम्पायर. उनके पास ह्यूज 4 कॉलम की आर्मी थी ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड एलिफेंट. नंदास was the one who introduced the system of standard weights and measure. इसको अच्छी तरीके से मार्क करके रखो. It's an important point. King Dhanananda was the last king of the Nanda dynasty. The Magad Empire had extended up to the Punjab in the western side. During the Dhanananda's reign, the ambitious youth Chandragupta Maurya had won the Patliputra and ended the Nanda rule, okay, and laid the foundation of the Maurya Empire. We are going to study in the next chapter about the foreign invasion on the western and northwestern frontier of India during the rise of Maurya Empire. Also, we are going to read about the Maurya Empire in greater detail, right? Do you know the ancient and modern names of the 16 Mahajanapadas? फर्स्ट वन द काशी जो अभी बनारस है. द कोसल नाउ लखनऊ. मल्ला जो अभी गोरखपुर बोला जाता है. वत्स वो इलाहाबाद. चेदी मीन्स कानपुर. कुरु दिल्ली. पंचाल रोहिलखंड. मत्स्य जयपुर. शुरुशेन मथुरा. अशमक औरंगाबाद महाराष्ट्र. अवंती उज्जैन. अनग चंपा ईस्ट बिहार. मगध साउथ बिहार. व्रिजी नॉर्थ बिहार. गंधारा पेशावर.
Kamboj near Gandhara. These were the ancient and modern names of the 16 Mahajanapadas, right? आपको इस लेसन के आंसर्स चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, मैं आपको भेज दूंगा। और आप लोग जो लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो वैसा मत कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इम्पॉर्टेंट एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर्स, ओके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।